जी वी आर लाइव नाउ, आप लोग कर दें स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू। जी, आज हमें रीडिंग करनी है, तो रीडिंग का हम पैसेज मैं ओपन करती हूँ। तो इस वीक हम रीडिंग कंप्लीट करेंगे। फाइन। तो मैंने जो आज ये लिया है, तो ये जो टेस्ट है ना 2022 मई का है। ओके, तो हम यूं ही करेंगे, मतलब मई से फिर हम जून उसके जून का भी देख लेंगे, फिर उसके बाद पीछे की तरफ रिपीट करते जाएंगे। Okay, today's reading passage 1, depression, question number 1 to 13. Okay, first of all, question number 1 to 5. Here, the reading passage 1 has 7 sections A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letters A to G in boxes 1 to 5 on your sheet, आंसर शीट। ओके, तो मैंने कहा ये आपको हमने स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स को आपने मैच करना है कि किस आपको पैराग्राफ ए टू जी में आप ये स्टेटमेंट जहां भी जिस पैराग्राफ से मैच करती है, आपने उस पैराग्राफ का यहाँ पे नंबर लिख देना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो इस तरह से है। तो हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब की स्टेटमेंट्स पढ़ लेनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी मिलती है तो हम उसे फौरन से आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा तरमीना, इसका लिंक सेंड कर दो चैट में। ओके, जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो में गिवन है, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो डिप्रेशन। Second statement, information regarding cases where drug treatment is inappropriate. Third, details of how those diagnosed with depression may be more vulnerable than other members of society. Fourth, information about society's attitudes to depression and similar illness. Fifth, information regarding why estimates of incidence of future growth in cases may be overly exaggerated. हमें ये आइडेंटिफाई करना है, तो हम पहले ही पैसेज से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay, in the first paragraph, it is often more difficult for outsiders and non-sufferers to understand mental rather than physical illness in others. While it may be easy for us to sympathize with individuals living with the burden of a physical illness or disability, there is often a stigma attached to being mentally ill, or a belief that such conditions only exist in individuals who lack the strength of character to cope with the real world. The pressures of modern life seem to have resulted in an increase in cases of emotional disharmony, and government initiatives in many countries have of late focused on increasing the general public's awareness and sympathy towards sufferers of mental illness and related conditions. So बताएं, कोई भी स्टेटमेंट से अगर मैच कर रही हो तो। यहाँ पे बात हुई है, एक तो उन्होंने बस ये बताया है कि मेंटली इलनेस के बारे में बता दिया है, बाकी उन्होंने बता दी कि प्रेशर होता है मॉडर्न लाइफ जो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो इमोशनल डिसहार्मनी है या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है इन मेनी कंट्रीज में। तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो अवेयरनेस हमें बढ़ानी चाहिए, कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी इलनेस आती है। आई थिंक कोई भी स्टेटमेंट में यहाँ पे सूट नहीं करती। आई एम राइट नाउ। मैम शायद पहले का देखेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन पहला ए किसी का होगा, वो नीचे ना, यानी कि वो एज ए सैंपल केस में नहीं बता देते होते। नहीं, इसका ना सैंपल केस नहीं गिवन, देखिए यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। जी ठीक ठीक है। ठीक है,
ओके मैं बी पैराग्राफ पढ़ती हूँ. Clinical depression or major depressive disorder, a state of extreme sadness or despair, is said to affect up to almost 20% of the population at some point in their lives prior to the age of 40. Studies have shown that this disorder is the leading cause of disability in North America. In the UK, almost 3 million people are said to be diagnosed with some form of depression at any one time, and experts believe that as many as a further 9 million other cases may go undiagnosed. World Health Organization projections indicate that clinical depression may become the second most significant cause of disability on a global scale by 2020. However, such figures are not unanimously spotted, as some experts believe that the diagnostic criteria used to identify the condition are not precise enough, leading to other types of depression being wrongly classified as clinical. So यहाँ तो हमें क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में बताया कि उसमें होता है कि सैडनेस या डिस्पेयर होते हैं और कहते हैं 20% पॉपुलेशन इसमें सफर है और वो कौन सी एज के होते हैं prior to the age of 40. फिर ये कहते हैं कि ये डिसऑर्डर लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी इन नॉर्थ अमेरिका में डिसेबिलिटी को भी काज कर दिया और यूके में ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल में ये वाली जो इलनेस है वो डायग्नोज हो गई है और कहते हैं कि मे भी उन्हें ये भी लगता है कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 9 मिलियन जो केसेस हैं वो अनडायग्नोज्ड हैं. Or World Health Organization projection indicate that clinical depression may become the second most significant cause of disability on a global scale by 2020. कहते हैं जो WHO projections हैं वो ये indicate करते हैं कि clinically जो depression है वो second most significant cause है disability on a global scale पूरे world में. कब की बात है 2020. However, such figures are not unanimously spotted, as some experts believe that diagnostic criteria used to identify the condition are not precise enough. तो कह रहे हैं कि जो मोस्टली ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि जो इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना वो ठीक नहीं है किसी हद तक, are not precise enough, leading to other types of depression being wrongly classified as clinical. कह रहे हैं किसी और टाइप की जो डिप्रेशन होते हैं उसे भी ये wrongly क्लासीफाई कर रहे हैं एज अ क्लिनिकल डिप्रेशन. तो किससे मैच करता है ये? आगे चले. यस मैम. थर्ड के साथ कैसे details of how those diagnosed with depression may be more vulnerable than other members of society. किस लाइन से लगता है आपको मोहम्मद अजमल? मतलब इसके जो कीवर्ड्स हैं वो किसी से तो मैच करते होंगे ना इस पैराग्राफ में, तो आपको किस लाइन से ये लगा कि ये थर्ड इससे सुटेबल है? ओके सी पढ़ते हैं. Many of us may experience periods of low morale or mood and feelings of rejection as a natural human response to negative events in our lives, such as bereavement, redundancy, or breakdown of a relationship. Some of us may even experience periods of depression and low levels of motivation which have no tangible reason or trigger. Clinical depression is classified as an ongoing state of negativity with no tangible cause, where sufferers enter a spiral of persistent negative thinking, often experiencing irritability, perpetual tiredness, and listlessness.
Sufferers of clinical depression are said to be at high risk of resorting to drug abuse or even suicide attempts than rest of the population. सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? यस मैम। ओके मैं ये कह रही थी कि जो ये मैंने लाइन हाईलाइट की है ना, तो ये मुझे थर्ड से मैच करती नजर आती है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट है, डिटेल्स ऑफ हाउ दोस डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन मे बी मोर वल्नरेबल देन अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल मिस, मुझे भी थर्ड ही लग रहा है। जी मुझे भी यही लग रहा है। चलिए इसी को कर देते हैं मार्क। ओके फिर डी पे आते हैं। Clinical depression is generally diagnosed when an individual is observed to exhibit an excessively depressed mood or anhedonia, and inability to experience pleasure from positive experiences such as enjoying a meal or pleasurable social interaction for a period of 2 weeks or more, in conjunction with 5 or more additional recognized symptoms. These additional symptoms may include overwhelming feelings of sadness, inability to sleep, or conversely, excessive sleeping, feelings of guilt, nervousness, abundant pain or fear, inability to concentrate, interference with memory capabilities, fixation with death, or extreme change in eating habits and associated weight gain or loss. So, I think details नहीं, I treatment alternative for worst case scenario नहीं हो सकता. Information regarding cases where drug treatment is inappropriate, information about society's attitude to depression and similar illness. Information regarding why estimates of incidence of future growth in case may be overly exaggerated. जी बताएं किससे मैच मुझे करते तो हैं? वन के साथ लग रहा है, डिटेल ऑफ वन के साथ ट्रीटमेंट। वन ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई ना यहाँ पर, क्या से वो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ उन्होंने सिर्फ सिम्टम्स बोले हैं। डायग्नोज पहली जो लाइन है, जर्नी डायग्नोज व्हेन एन इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड टू, ये सारे सिम्टम्स होने का है ना, कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो ये सारा ट्रीटमेंट से नहीं मैच करेगा। और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में भी उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन अबाउट सोसाइटीज एटीट्यूड, तो सोसाइटी का तो यहाँ एटीट्यूड बताया नहीं हुआ, उन्होंने तो जस्ट उस पर्सन का बताया जो डिप्रेशन जिसमें डायग्नोज होती है वो इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं, तो ये भी नहीं बनता। सेकंड दूसरे नंबर के फिर के बारे में, ड्रग ट्रीटमेंट इज इनएप्रोप्रिएट, ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई। मतलब तो ये है कि अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो ठीक ना हो रहा हो
फिर हम कर सकते थे। ओके आगे मूव करते हैं। मुझे तो ये था कि इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप लोग को किसी में भी डाउट है तो मुझे बता दें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इस पे। Okay. Clinical depression is generally diagnosed when an individual is observed to exhibit an excessively depressed mood. नहीं तो हो गया, sorry, ये आना था. Clinical depression was originally solely attributed to chemical imbalance in the brain, and while antidepressant drug which work to optimize level of feel-good chemicals, serotonin and norepinephrine, are still commonly prescribed today. Experts now believe that onset of depression may be caused by a number and often combination of psychological and socio-psychological factors. Treatment approaches vary quite dramatically from place to place, okay, and are often tailored to an individual's particular situation. However, some variation of a combination of medication and psychotherapy is most commonly used. The more controversial electroconvulsive therapy, ECT, may also be used where initial approaches fail. In extreme cases where an individual exhibits behavior which indicates that they may cause physical harm to themselves, psychiatric hospitalization may be necessary as a form of intensive therapy. Okay. I think ये इससे सेकंड से मैच करा है. Information regarding cases where drug treatment is inappropriate. तो उन्होंने कहा बात की थी, हाँ उन्होंने कहा ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो है ना वेरी क्वाइट ड्रामेटिकल, मतलब वो डिफरेंट है. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर ऑफन टेलर्ड टू एन इंडिविजुअल पार्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, पहले नंबर देखिए वो कह रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन भी हो रहा है, कुछ को हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं, मतलब कुछ के लिए मेडिसिन यूज करते हैं और कुछ का हम वैसे ही साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं. सो ई इससे मैच कर रहे हैं. फाइन. ओके अब हम एफ की तरफ और किसी से मैच करते हैं तो बता दें. नहीं ये डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो डिप्रेशन, ये भी तो हो सकता है. देखे ना मुझे 1 यहाँ नंबर का नहीं बोला था आपने. ये क्या क्या कहा मुझे आपने. 1 लग रहा था. वन ये भी है, वन भी है जी. ये जो लाइन है ना ये मैं कर रही हूँ, ये वन इससे मैच करती है. देखिए इन एक्सट्रीम केसेस किससे मैच करा, वर्स्ट केसेस से. ठीक है, where an individual exhibit behavior which indicate that they may cause physical harm to themselves, psychiatric hospitalization may be necessary as a form of intensive therapy. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या मेथड है. तो वो उसका ये मेथड है कि हम साइकोथेरेपी यूज करेंगे, जिसे हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे. और किसके लिए होगा, ये वर्स्ट केस के लिए होगा या एक्सट्रीम केस के लिए होगा. ठीक है, एग्री हैं आप सब. यस मैम. चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं आप. Some recent studies such as those published by the Archives of General Psychiatry hold that around a quarter of diagnosed clinical depression cases should actually be considered as significant but nonetheless ordinary sadness and maladjustment to coping with trials in life, indicating that in such cases psychotherapy rather than treatment through medication is required. Recovery as a result of psychotherapy tends in most cases to be a slower process than improvement related to medication. However, improvements as a result of psychological treatment, once achieved, have been observed in some individuals to be more longer term and sustainable than those attained through prescription drugs. Various counseling approaches exist through all focus on enhancing the subject's ability to function on a personal and interpersonal level. Sessions involve encouragement of an individual to view themselves and their relationship in a more positive manner, with the intention of helping patients to replace negative thoughts with a more positive outlook. अच्छा वैसे ना
ये इससे भी होता है, सेकंड वाला ना यहाँ आ रहा था, देखें कहाँ था ये, साइकोथेरेपी रेदर देन ट्रीटमेंट थ्रू मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे ये दूसरे का होगा ये ये वाली लाइन ना, मुझे लग रहा है ये सेकंड से है, कि उन्होंने कहा था कि जो, वैसे वो तो बाकी पार्ट्स में जाग रहे हैं हमारे ये साथ। सेकंड वाला ही लग रहा है मिस। मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें भी और ऊपर वाले में भी, तो मैं इसलिए आप लोगों से, मैम इस पे मुझे ऊपर वाले का यानी कि वन का ही बिल्कुल क्लियरली लगा था और आप फिर अच्छा ठीक है, और किसी और से मैच करते हैं, नहीं करता। ठीक है, अब तो हमारा लास्ट रह गया और हमारे दो रहते हैं। अच्छा, ये वाला अगर हमारा नाम लेना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एस्टिमेट्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन केसेस में बी ओवरली एग्जैजरेटेड, तो ये ना बी वाले से मैच करेगा, तो हम एक बार दोबारा बी वाले को देख लेंगे। अब यस पहले मैम। जी पढ़ते हैं। ठीक है, जी में है, it is apparent the susceptibility to depression can run in families. However, it remains unclear as to whether this is truly an inherited genetic trait or whether biological and environmental factors common to family members may be at the root of the problem. In some cases, sufferers of depression may need to unlearn certain behaviors and attitudes they have established in life and develop new coping strategies designed to help them deal with problems they may encounter, undoing patterns of destructive behavior they may have observed in their role models and acquired for themselves. फोर्स मैच हो रहा है या नहीं, बताएं। यस मैम ये फोर्स ही मैच होता है क्योंकि इसमें सोसाइटी में जो भी वो कहते से क्या कहते हैं ख्यालात पाए जाते हैं इसको लेके वो सोसाइटी का वर्ड तो प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, कहाँ से आपको ही मिल रही है। एक मिनट। एटीट्यूड्स की बात हुई है बट यस मैम। ठीक है, इसी से होगा। ओके, अब ये फिफ्थ वाला रह गया हमारा, और हमने क्या नहीं किया, डी डी रह गया हमारा, ए और बी। बाकी सबको समझ आ रही है या इंटरेस्ट नहीं है। ये मिस एक दफा ये वाला पहला टास्क मुकम्मल करते हैं ना फिर एक चीज पूछना चाहूंगा सर से। सर तरह हमारे साथ है। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो फ्यूचर ग्रोथ की बात हो रही है ना, तो हम इसे देख सकते हैं। मुझे इस पे थोड़ा डाउट है कि मे बी इससे हो मैच। एक इनमें से इसे दोबारा जल्दी से पढ़ लेते हैं ना अपने।
Clinical depression or major depressive disorder, a state of extreme sadness or despair, is said to affect up to almost 20% of the population at some point in their lives prior to the age of 40. Studies have shown that this disorder is the leading cause of disability in North America. In the UK, almost 3 million people are said to be diagnosed with some form of depression at any one time, and experts believe that as many as a further 9 million other cases may go undiagnosed. World Health Organization projections indicate that clinical depression may become the second most significant cause of disability on a global scale by 2020. तो ये भी तो है ना second most है, तो उनका ये मानना था. Okay, but however, such figures are not unanimously spotted, as some experts believe that diagnostic criteria used to identify the condition are not precise enough, leading to other type of depression being wrongly classified as clinical. Ma'am Fatma and Sir Talha, please आप कुछ help करें. मिस मैं सर तला से कुछ पूछना चाहूंगा. जी जी पूछिए. सर तलहा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर तलहा, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? अच्छा, इधर एक चीज ना मिस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ना मिस जमीन. जी जी बोले. अच्छा, ये एक चीज जो सर तलहा ने और मिस फातिमा ने 2 टिप्स दी लिसनिंग के बारे में कि कुछ जो भी है हम मूवीज देख सकते हैं, उनसे लिसनिंग बहुत अच्छी हुई, मेरी जेन्युइनली इम्प्रूव हुई. फिर मिस फातिमा ने और सर तलहा ने कहा कि आप ऑलरेडी लिखे हुए मॉडल जो पढ़े, बुक मिस ने कहा था कि बुक से एंड से पढ़े, सर तलहा ने कहा आइट्स लिस्ट से पढ़े, उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई राइटिंग में. अब ये जिस तरह ये एक बड़ा डिफिकल्ट सा रीडिंग थी, तो बेसिकली सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ टास्क अटेम्प्ट करने से ही ये इतनी रीडिंग एक एबिलिटी या स्किल है क्या? हम यानी कि मैं चाह रहा हूँ कोई इस तरह की टिप मिले जिससे इसकी एक्सरसाइज हो कि ताकि ये फास्टली रीडिंग हम कर सकें, जिससे ये टास्क फिर ओवरऑल ये वाला मॉड्यूल करना आसान हो जाएगा. क्या मैं अपना सवाल समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि जो मैं पूछना जी चाह रहा हूँ? जी आपकी बात मैं समझ गई हूँ, और उसका यही मेथड है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें. ठीक है, आप जितना आप लिखा हुआ दूसरों का पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि वो बात क्या समझाना चाह रही है. तो अगर आपको कोई और भी, मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ और चीजें उठा के पढ़ें, आप बेहतर है कि जो मॉक टेस्ट गिवन है हमें आइल्स के, तो ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली जो हमें पैराग्राफ्स हमें टेस्ट में मिलते हैं ना, उसके यानी कि एक रिजेम्बलेंस होती है कि वो इस तरह का उन्होंने दिया होता है और इस तरह से उन्होंने अपनी ये सारी स्टेटमेंट्स मिक्सअप की होती हैं, और उसमें से सेंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो ये अगर हम बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो उससे हमारी खुद ब खुद सेंस बनती जाएगी और हमें पता चलता जाएगा कि ये लोग हमसे किस तरह के आंसर्स मांगते हैं और हमें लॉजिक कैसे बनानी है इनके क्वेश्चंस की. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई बाहर की बुक उठाएं उससे पढ़ें तो उससे ठीक होगा. स्टोरी कुछ और होता है. ठीक है, ये एक ना हमें वो गिवन होता है, मतलब कि हमें कोई एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया, तो हमें कोई भी आर्टिकल गिवन हो गया, तो हमने उसमें से एक जो कहते हैं ना की पॉइंट्स ढूंढना, तो ये वो हम की पॉइंट्स होते हैं हमारे सामने, और ये तभी होंगे जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आइल्स रीडिंग टेस्ट में. अच्छा, और आपको दूसरा ये आप मैम सही कह रही हैं कि आप ना इसी का मटेरियल ही पढ़ें, क्योंकि उन्होंने ना चीज़ें रिफ्रेश की होती हैं और बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग ना यूज़ की हुई होती है. और तीसरी बात ये होती है, इसको सॉल्व करने की ना टेक्निक्स होती हैं, तो इसलिए जो आपको वर्ड्स मुश्किल लगते हैं ना, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, तो आपको चाहिए उसको साथ साथ अंडरलाइन करते लाइन करते जाएं, इसी को पढ़ें और उसको अंडरलाइन करके उसके मतलब देखें कि इसका यहाँ पे क्या सेंस बनती है और इस वर्ड को इन्होंने कैसे रिफ्रेश किया. बनिस्बत ये है कि आप कोई और चीज़ पढ़ें, तो उससे बेटर ये है कि आइट्स का जितना मटेरियल बुक्स में दिया हुआ है ना रीडिंग से रिलेटेड,
वो सारा बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरा पेपर जो है वो डिजाइन किया हुआ होता है और हमेशा वही डिजाइन किया हुआ आएगा। वैसे अगर रीडिंग करनी है तो आप कर लें, लेकिन अगर आप आइट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि जितना मटेरियल इसका बुक्स में दिया हुआ है, किसी वेबसाइट पे दिया हुआ है या मॉक टेस्ट वगैरह पे पड़ा है, इसी की ही रीडिंग करें। आप पहले ऐसे करें, अगर आपकी रीडिंग नहीं अच्छी या वर्ड्स आप नहीं बोल सकते या जल्दी नहीं पढ़ सकते, तो आप ना पहले सिर्फ इसको रीडिंग करें, फिर आप इसकी ट्रांसलेशन करें, फिर जो मुश्किल वर्ड्स हैं फिर आप उनको अंडरलाइन करके उनके मतलब निकालें, फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि ये चीजें किस तरह से हुई होती है। इसके अलावा अगर आप कुछ और करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपने आइट्स देना है तो फिर आप इसी का ही मटेरियल यूज करें। बाकी मैंने भी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी थी, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे आपकी रीडिंग अच्छी होती है। मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं इंग्लिश की, लेकिन इनकी ना चीजें थोड़ी टेक्निकल होती हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसी का ही मटेरियल पढ़ें। जितना भी टाइम लगाना है ना, तो आप आइट्स की ऑफिशियल रीडिंग की ही मटेरियल के ऊपर टाइम लगाएं। यस मैम, मैं आपकी बात समझ पाया हूँ। अगर देख, एक चीज मेरे माइंड में जो है कि ये हम पढ़ते हैं ना, ये आर्टिकल या जो भी रीडिंग था, इसको यानी कि माइंड में ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, इसको बस इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड जैसा भी होता है, और रीडिंग के दौरान बस तेजी से रीडिंग करते जाएं। अगर रीडिंग टास्क की हम साथ में अगर मीनिंग काउंट चेक करेंगे तो वो उसकी ना स्पीड फिर कम करती है। और दूसरा बस जैसे मैंने एक पिछले दिन एक बुक पढ़ रहा था, उससे पहले मैं उनके मीनिंग भी साथ लिख रहा था, मगर उस दिन मैंने इस तरह किया कि मैंने मीनिंग नहीं लिखे और फास्टली बस पढ़ता गया, और एज जो यानी कि उसका जो मीनिंग माइंड में आ रहा था वही बस समझ के फौरन, अगर कुछ इस तरह के बहुत ज्यादा वर्ड आए जिनका मीनिंग मुझे नहीं भी पता था, मगर इस तरह मेरी रीडिंग फास्ट हुई थी। तो ठीक है ना, आप पढ़ते जाएं, जो अगर आपको पढ़ने में आसानी है तो आप पढ़ें। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती, बहुत से ऐसे ना इनके वर्ड्स होते हैं कि जो इन्होंने ना बहुत मुश्किल से रिफ्रेज किए होते हैं, तो आप ना फोकस करें कि आप बेशक इसकी ट्रांसलेशन कर लिया करें। फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल होगी ट्रांसलेशन करने में, जो इनके वर्ड्स होते हैं उनके मतलब निकालने में, लेकिन अगर आप इसके यूज टू हो जाए ना, आप बार बार इसको पढ़ते रहें, इनकी ना चीजें सेम पैटर्न पे रिपीट होती हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से वर्ड चेंज करके सारी चीजें रिफ्रेश करके आपको कंफ्यूज किया होता है। तो इसके मटेरियल से नहीं हटना आपने, बाकी पढ़ने से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और हमारे यस साथ एक अभी मैसेज आया था इनका, ये शुएब सुल्तान, इनके कोई क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन पूछ लें तो फिर हम उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। इनकी आज फर्स्ट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा ये सवाल था कि मैम ये जो आइलेट्स का टेस्ट है ये किस किस टाइम होता है साल में, और इसको अप्लाई हम किस तरह करते हैं, अच्छा और इसके ये अप्लाई करने के लिए कोई फीस वगैरह होती है या फिर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, या डायरेक्ट हम वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते अच्छा, इसका ये है कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। दो हैं इसके, एक ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू है और एक ऑस्ट्रेलिया के थ्रू AEO है। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, और इनके ऑफिस भी हर सिटी में अवेलेबल हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। इनका जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वो हर मंथ में 2 से 3 दफा होता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इनका होता है जो कि हर वीक में चल रहा होता है। तो आप कभी भी इसका किसी भी वीक में टेस्ट दे सकते हैं, आपको सीट अवेलेबल होगी, मिल जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं। और जो इसकी फीस है वो ना 40 प्लस एक दफा देने की, अगर आपने एक दफा अपना टेस्ट देना है तो आपको 40 प्लस फी जो है वो इसकी पे करनी पड़ेगी। और बुक आप अपनी सिटी से करा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाएं। इनकी 2 ब्रांच हैं, एक ब्रिटिश काउंसिल की है ब्रिटिश की तरफ से, और एक AEO है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इन दोनों में से आप जिस में भी चाहें आप उसमें करके ना आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इनके ऑफिस भी हर सिटी में अवेलेबल है। हैं। इसके ओके मैम, अलावा थैंक यू मैम। ओके, हमारे पास टाइम कम है, हमें ये वाला पूरा करना होगा। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं चूज 3 लेटर्स A to G। A to G में से हमें कोई भी 3 यहाँ से चूज करनी है, और 6 to 8 तक ये क्वेश्चंस हैं। और देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला है, गवर्नमेंट्स हैव जनरली फेल्ड टू टेक एक्शन टू एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द कंडीशन। तो ये ट्रू होने चाहिए, मतलब जो इन्होंने स्टेटमेंट बताई है वो ट्रू हो। हमने देखना है कि क्या ये बात हुई है। तो मुझे यहाँ लगे कि the pressure of modern life seem to have resulted in an increase in cases of emotional disharmony, and government initiatives in many countries have of late
focus on increasing the general public awareness and sympathy toward sufferer of mental illness and related condition. Of late वाला word जो है वो मुझे यहाँ field से match करता हुआ जमीना, इसमें पता है 3 लिखा हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई स्टेटमेंट बताई हुई है कि इनमें से बताएं कौन सी 3 ट्रू बनती, तो डिप्रेशन पे फोकस करना है देखते हुए। ठीक जी मैम, ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसी का, तो मैं इसलिए देख रही थी कि गवर्नमेंट की बात ना सिर्फ यहाँ हो रही है, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये जो ऑफ लेट का जो वर्ड यहाँ यूज किया क्या वो फेल हो सकता है। नहीं, फिर इसमें ये भी फोकस करना है हमने कि जो ऊपर से बात शुरू की हुई हो ना उन्होंने, वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो। मैम ये देखिए ना, यहाँ पे उसने मेंटल इलनेस की बात की हुई है, ये पूरा पढ़ो ना स्टेटमेंट। sufferer of mental illness and related condition, तो mental illness मैम डिसऑर्डर वो डिप्रेशन से नहीं करता होगा, क्योंकि और कोई बॉडी पार्ट्स तो उसमें नहीं हो सकता। मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है तो वो डिप्रेशन में होता है, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, ये फेल्ड आप किस वर्ड का मतलब बता रही थी कि उससे रिलेट करता है? ऑफ लेट जो है ना, मुझे लगता है कि वो ना उसका बनता है फेल्ड का। ऑफ लेट ये देखिए सेकंड लास्ट में, हाँ, ऑफ लेट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द जनरल पब्लिक अवेयरनेस, के वो ना उन्हें फोकस नहीं कर पा रहे कि उनमें जनरल अवेयरनेस हो पब्लिक्स में, तो उससे वो फेल, ऑफ लेट का वर्ड मुझे लग रहा है फेल से मैच करते हैं। ठीक है। ओके, फिर है द हाईएस्ट रिपोर्टेड नंबर ऑफ केसेस आर इन यूएसए, यूएसए में नहीं है, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की बात की और यूके, और बट नॉर्थ अमेरिका में यूएसए आता है ऐसे ही ना मैम? जी बाकी सब क्या कहते हैं? ये सेकंड में बताया गया है, studies have shown that this disorder is the leading cause of disability in North America. In the UK, almost 3 million people are said to be diagnosed with some form of depression at any one time. Experts believe that as many as further 9 million other cases may be undiagnosed. So highest reported number of cases are in the USA. Properly उन्होंने USA का नेम नहीं दिया इस पूरे रीडिंग पैसेज में, बट मुझे इससे रिजेंबल करता हुआ होता है। जी शोएब, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक बार जो टेस्ट दे रहे हैं उसकी एक बार फी पे करेंगे, अगर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना चाहते हैं उसके लिए दोबारा से आपने उतनी ही फी पे करनी है। और अब आ जाते हैं सी पे। इन ब्रिटेन इट इज लाइकली दैट देयर आर मोर इंडिविजुअल हु लिव विद द कंडीशन विदाउट द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर देन दोज बीइंग ऑफिशियली ट्रीटेड। ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, क्लिनिकल डिप्रेशन मे बी ट्रिगर्ड बाय डाइवोर्स। हाँ जी बताएं, ये बात हुई थी ना? आई थिंक इधर हुई थी, ये देखें इस लाइन में, ब्रेकडाउन ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, मैनी ऑफ अस may experience periods of low morale or mood or and feeling of rejection as a natural human response to negative events in our lives such as bereavement, redundancy or breakdown of a relationship, and this is a clinical depression, because of clinical depression. Am I right? Yes ma'am. Okay, फिर देखते हैं ये लास्ट वन जो रहते हैं, लेदरली मे बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसकी कोई बात नहीं हुई। प्रेस्क्राइब्ड फार्मास्यूटिकल्स हैव रेडिकली चेंज ओवर रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स की भी कोई बात नहीं हुई, हुई थी? ट्वेंटी पे बात हुई थी, रिसेंट ईयर नहीं बनता जरमीना। नो मैम, वहाँ ना मेडिसिन फार्मेसी के बारे में कोई बात नहीं हुई। यहाँ देखिए प्रेस्क्राइब फार्मास्यूटिकल्स, तो वो तो जस्ट उन्होंने कहा था कि ये डिसेबिलिटी, सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी।
अच्छा सही है फिर। ये हुई थी यहाँ, इस वाले में हुई थी मेरे ख्याल से, यहाँ ई वाले में, यहाँ हमने ट्रीटमेंट की बात की थी, बट ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो कहे कि ओवर रिसेंट ईयर्स हमें वो चेंज कर देते हैं। ठीक है फिर तो ठीक है। ठीक है, और अब हम्म, लास्ट वाला है अप्रोचेस टू ट्रीटिंग डिप्रेशन आर नॉट यूनिवर्सल। ये भी नहीं, हमने ऐसा कुछ यूनिवर्सल के बारे में नहीं पढ़ा। तो मेरे ख्याल से हमारे 3 हो गए हैं, ए बी एंड डी। हाँ तो नेक्स्ट इसको अब मूव करें। सबमिट करो। इतना टाइम है, ये हो मैम अभी जाएगी? हमारे, जी जी हो जाएगा, क्यों नहीं 9 सॉरी। to 13 हम्म, ये रहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ना मतलब क्या करें, आप लोग ना अगर मोबाइल पर हैं तो इनकी इन्हें लिख लें या इनकी पिक्चर्स बना लें, क्योंकि ये नीचे हो जाएंगे फिर हमें बार बार पता नहीं चलेगा। ओके, अब पता है हमने क्या करना है। उन्होंने हमें कहा 9 to 13 जो क्वेश्चंस गिवन है, कंप्लीट द समरी ऑफ पैराग्राफ एफ एंड जी विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू एल बिलो। ठीक है, उन्हें कहा आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, ए टू एल तक, ये सारे ए टू एल तक हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड है। और हमें जो समरी मैच करनी है ना, वो किन पैराग्राफ से करनी है, एफ एंड जी। जस्ट हमने 2 पैराग्राफ्स को रीड करना है और उनसे मैचेबल जो वर्ड्स यहाँ होंगे उन्हें हमें पुट कर देने हैं। फाइन, तो हम देखेंगे लास्ट 2 पैराग्राफ्स को। और पहले हमारी लाइन क्या है, विल्स रिकवरी थ्रू काउंसलिंग रेदर देन मेडिसिन मे बी मोर डैश। कह रहे हैं कि जो रिकवरी होती है ना काउंसलिंग की, जो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करके रिकवरी करवा रहे हैं, वो ज्यादा है, मे बी मोर डैश एज कंपेयर टू मेडिसिन। तो हम इसका एस में बढ़ते हैं। Some recent studies, such as those published by the Archives of Journal Psychiatry, hold that around a quarter of diagnosed clinical depression cases should actually be considered as significant but nonetheless ordinary sadness and maladjustment to coping with trials in life, indicating that in such cases, psychotherapy rather than treatment through medication is required. Okay, recovery के बाद अब आइए recovery Recovery as a result of psychotherapy tends in most cases to be a slower process than improvement related to a medication. However, improvement as a result of psychological treatment once achieved have been observed in some individuals to be more long-term and sustainable than those attained through prescription drug. Yes, maybe more. अच्छा देखिए, यहाँ स्लोअर प्रोसेस आया ना, ठीक है, स्लोअर प्रोसेस है। उन्होंने कहा है कि जो साइकोथेरेपी जो टेंड करते हैं ना, साइकोथेरेपी के थ्रू जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, रिकवरी हो रही है, वो स्लोअर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू मेडिकेशन। तो स्लोअर प्रोसेस के लिए हमारे पास वहां पे जो वर्ड गिवन था, तो बताएं मुझे कौन सा मैच करता है। आई थिंक दिस वन, क्या ख्याल है? करते हैं या नहीं? अच्छा, ग्रेजुअल किस नंबर पे था? आई, नहीं है समझ आप लोगों को? इतने खामोश क्यों है? नहीं मिस, आई है समझ, ये ग्रेजुअली है कि एक ठीक है, की तरफ। अगर समझ नहीं नेक्स्ट। आई कि कैसे सॉल्व करना है तो पूछ लें, उसके बाद ही सॉल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत जी, मुश्किल होता है आंसर फाइंड आउट करना। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें कि ये क्या चीज है। अगर पता अगर है आप तो लोग, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप लोगों के सेंस नहीं डेवलप हुई, जैसे मैंने इसका आंसर बताया, कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिजल्ट्स वंस अचीव्ड मे हैव मोर डैश विद सम पेशेंट्स। कह रहे जो अगर हम जो काउंसलिंग करके जो रिकवरी हो रही है, वो एक बार हम उससे रिजल्ट अचीव हो जाए, मे हैव मोर डैश विद सम पेशेंट। इसके देखिए, ये था ना, ये वाला
improvement से. However, improvement as a result of psychological treatment once achieved have been observed in some individual to be more long term. ठीक है, कुछ some individuals की बात होगी जो कि some patients से मैच कर रही है और कह रहे हैं एक बार अगर रिजल्ट अचीव हो जाए तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा. समझ आई? अब लॉन्ग टर्म का क्या सिनोनिम बनता है वो हम नीचे से मैच करेंगे. लॉन्ग टर्म, लॉन्गिविटी. जी यही लग रहा है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग और तो कोई. ठीक है, डी कर लेते हैं फिर से. ओके, फिर है काउंसलिंग सेशन आर गेट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द सब्जेक्ट्स रिलेशनशिप विद अदर्स एंड देयर ओन डैश. with others and their own dash. I think ये था अच्छा, इसी से आगे देखते हैं. Various counseling approaches exist through all focus on enhancing the subject's ability to function on a personal and interpersonal level. ये बात हो गई, मुझे तो लगता है ये मैच हो रही है. Sessions involve encouragement of an individual to view themselves and their relationships in a more positive manner with the intention of helping patient to replace negative thoughts with a more positive outlook. अच्छा, more positive outlook. ठीक है, आउटलुक तो ये रहा, तो हम इससे तो फिल कर लेना. पॉजिटिव का क्या सिनोनिम बनेगा? पॉजिटिव. इसका ऑप्टिमिस्टिक बन सकता है या एम्बिशी. ऑप्टिमिस्टिक मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है. हाँ, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा बेटर है. तो हम इसे डी लगाते हैं. ओके, जब तक आप उसे देखें ऊपर वाले को. ओके, counseling session are geared towards improving the subject's relationship with others and their own themselves आएगा ना यहाँ. with their own. अच्छा, तो हम ना इससे देख लेते हैं यहाँ से. इस इधर लेवल्स वर्ड नहीं आएगा. ये ऑल्दो एबिलिटी टू Interpersonal level. फंक्शन ऑन पर्सनल एंड इंटरपर्सनल लेवल. आप ऊपर कीजिएगा एक दफा वो आंसर वाली साइड पे. अच्छा, मैं करती हूँ. मतलब मुझे इंटरपर्सनल लेवल नहीं लग रहा है. क्यों? उसकी रीजन ये है कि अब देखिए, इम्प्रूविंग सब्जेक्ट रिलेशनशिप विद अदर्स. इंटरपर्सनल लेवल तो हो गया विद अदर्स वाला, एंड देयर ओन. ये पहले फंक्शन टू फंक्शन ऑन अ पर्सनल. हाँ जी, वही ना, अपने खुद की बात होनी चाहिए. तो मुझे लग रहा है ओन सेल्फ इमेज आना चाहिए. चले ठीक है. ठीक है. हाँ, encouragement of an individual to view themselves, कि वो खुद को भी देख सकता है, कि वो खुद को देख सकता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ, और अपने रिलेशनशिप को भी बहुत पॉजिटिव मैनर से देख सकता है. तो मुझे यहाँ सेल्फ इमेज लग रहा है, जो कि लास्ट था, ये रहा एच. ठीक है. 5 मिनट है हमारे पास. ओके, हमारे पास अब रह गया आखिरी. तो वो है द एक्सटेंट टू विच जेनेटिक डिस्पोजिशन. ये था हमारा जेनेटिक, जो बातें थी ना वो हमने जी में पढ़ी थी. extent to which genetic disposition and sociological factors impact on state of mind is dash. State of mind. It is apparent that susceptibility to depression can run in families. However, it remains unclear as it whether
thus is truly an inherited genetic trait, or whether biological and environmental factors common to family members may be at the root of the problem. In some cases, sufferers of depression may need to unlearn certain behaviors and attitudes they have established in life and develop new coping strategies designed to help them deal with problems they may encounter, ongoing pattern of destructive behavior they may have observed in their role model and acquired for themselves. क्या बनेगा? Impact on state of mind. State of mind. जी कुछ समझ आया? नहीं मिस अभी आंसर तो नहीं बताने के बारे में। Okay, okay. Undergoing counseling therapy, do so with the purpose of unlearning negative behavior and reaction. Unlearning behavior is yoga. It means biological and environmental factors common to family members may be at the root of problem. State of mind is ये नहीं हो सकता. Miss, This is इधर ही truly अगर an आप inherited genetic trait. यस देखिएगा उधर आंसर में है कोई इस तरह का, तो इसका सिग्नल Genetic trait.